So, good morning, class. Today we are starting with our lesson number 10, measurement of distances and motion. तो किसी भी वस्तु का या चीज़ का या वाहन का मोशन में है कि नहीं, पहले वो पता लगाना है और फिर वो कितना डिस्टेंस आगे गया वो हम मेज़र करेंगे, ठीक है। There was a general discussion among the children in the Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacation. Someone had gone to their native village by train, then by bus, and then finally by a bullock cart. One student had travelled by an aeroplane, and another spent many days of his holidays going on fishing trips in the uncle's boat. The teacher then asked them to read the newspaper articles, then mentioned about the small wheeled vehicles that move on the soil of Mars and conducted the experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to the Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about the ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in the earlier times. तो अभी देखो यहाँ पर क्लास में बच्चे बातें कर रहे थे, तो कौन कहाँ छुट्टियों में घूमने गया था। तो कोई पहले ट्रेन में गया, फिर बस में गया, फिर बुलक कार्ट में गया, कोई बोट में गया था, कोई एरोप्लेन में गया था। एंड फिर टीचर ने उनको न्यूज़पेपर रीड करने को बोला। तो न्यूज़पेपर में ऐसा था कि स्पेस व्हीकल्स जो होते हैं, जो अंतरिक्ष यान जो होता है, वो व्हीकल्स ले जाता है साथ में और फिर मार्स के ऊपर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वहाँ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर हम पृथ्वी पर भेजता है हमको। फिर हमें पता लगता है कि मार्स की ज़मीन कैसी है, वातावरण कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वो सब चीज़ों के बारे में। और उसी दौरान पहली को एक क्वेश्चन हुआ कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे शुरू हुई। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी द गुड्स ऑन देयर बैक. Later on, they began to use the animals for transportation. For transport through water, routes, boats were used from ancient times. To begin with, the boats were the simple log of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and give the shape to the boats, and these shapes initiated the shapes of animal living in water. Recall our discussions of this streamlined shape of fish in the chapter 8 and 9. So, invention of the wheel made a great change in the modes of transport. The design of the wheel was improved over the thousands of years. Animals were used to pull the carts that moved on the wheels. And until the beginning of the 19th century, people still dependent on animals, boats and ships to transport them from place to place. The invention of steam engine led to the development of new means of transports. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. Later came automobiles such as the motor car, trucks and buses. Motorized boats and ships were used as a means of transport on water. The early years of 1900 show the development of aeroplanes. These were later improved to carry the passengers and goods, and electric train, monorail, supersonic airplanes and spacecraft are some of the contributions of the 20th century. Figure 10.1 shows some of the different modes of transports. Place them in the correct order from the earliest mode of transport to the most recent. And are there any of the early modes of transport that not be used in today? तो पहली को जो क्वेश्चन हुआ था कि पुराने ज़माने में लोग
ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते? तो पहले तो कुछ था ही नहीं, लोग पैदल चलते थे और सामान उठाना हो तो अपनी पीठ के ऊपर उठाते थे, राइट। फिर अगर बीच में रास्ते में कहीं नदी या तालाब में आ गया तो वो लोग क्या यूज़ करते थे? पेड़ के लकड़े जो होते थे ना, उसको बीच में से खाली कर देते थे काट के, है ना, बीच का हिस्सा काट देते थे तो यूँ राउंड शेप का बन जाता था, तो उसी के ऊपर से चलते थे, राइट, यूज़ करते थे। फिर उसको बड़ा सा एक बोट का शेप देना शुरू कर दिया, राइट। फिर धीरे धीरे लकड़े को गोल शेप में काटा और व्हील की इन्वेंशन हुई। तो फिर जानवरों को जोड़ दिया एक कार्ट बना के, है ना। तो शुरुआत वहाँ से हुई, जैसे ही गोल व्हील बना उसका एक कार्ट बनाया और उसके जानवर खींचते थे, है ना, बैलगाड़ी कैसे होती है वैसे, राइट। फिर धीरे धीरे मोटराइज्ड मशीन से चलने वाले मशीन लगा दिया गया, राइट, ताकि जानवर हटा के मशीन लगा दिया और वो मोटर के साथ जोड़ने के बाद व्हील चलने लगे। और फिर धीरे धीरे स्टीम इंजन डेवलप्ड हुआ और फिर ट्रेन चालू हुई स्टीम इंजन से, राइट। और फिर लेटर एरोप्लेन्स डेवलप्ड हुए। तो आज हम लोग साइकिल, पैदल साइकिल, बुलक कार्ट, फिर कार्स, बसेस, ट्रक्स, स्पेस व्हीकल, सब व्हील की इन्वेंशन हुई जब से, तब से दुनिया में गति आ गई, डेवलपमेंट आ गया, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम जाने लगे। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर किसी ने बजा है तो वो होता है व्हील। जब से व्हील बना तब से फिर डेवलपमेंट शुरू हो गया। सो हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क? ये हमारा बेंच के ऊपर जब हम बैठते हैं तो जो डेस्क होता है वो कितना बड़ा है, मेज़र करना है तो हम किससे करेंगे? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड? हम कितना आगे चल के आए, राइट, या दौड़ के आए, वो कैसे पता लगेगा? हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस or a rickshaw to reach your school? When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answers to this question? It is often important to know that how far is a place so that we can have an idea how we are going to reach that place, by walking or by taking a bus or by taking a train or by a ship or by aeroplane or even a spacecraft. So sometimes there are objects whose length or width we need to know. तो अगर देखो आप सोचोगे कि मुझे स्कूल से घर जाना है, तो आपका घर बिल्कुल स्कूल के नज़दीक है, तो आप बोलोगे मुझे बस में जाना है स्कूल? नहीं, आप पैदल ही आ सकते हो। क्यों? क्योंकि स्कूल के बाजू में ही तुम्हारा घर है। और आधा 1 किलोमीटर दूर है तो आप साइकिल से आ सकते हो, राइट। 2-3 किलोमीटर दूर है तो आप बोलोगे नहीं, साइकिल से तो थक जाएंगे, हम रिक्शा में आएंगे, राइट। और अगर 10 किलोमीटर दूर है स्कूल से तुम्हारा घर, तो रिक्शा भी काम नहीं आएगा, बस में जाना पड़ेगा तुम्हें, राइट। सो कौन सी जगह पर हमें जाना है, अगर हमें डिस्टेंस पता हो, राइट, तो हम पता लगाएंगे कि भाई हम कैसे जाएंगे वहाँ पर। पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जाएंगे, बस लेंगे, रिक्शा लेंगे, स्कूटर लेंगे, राइट। सो डिस्टेंस कितना है, एक जगह के दूसरी जगह के बीच में अंतर कितना है, वो कैसे मेज़र करते हैं? इन पहेली एंड बुजोस क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 students. And Paheli and Bujo shared the one desk, but fortunately end up objecting that one another is using a larger share of the desk. कभी कभी आप लोग बेंच में बैठते हो ना दूसरे स्टूडेंट के साथ, तो आप अपनी जगह और वो स्टूडेंट की जगह डिवाइड कर लेते हो, है ना, इतनी जगह तेरी, इतनी जगह मेरी। फिर कभी वो अपना सामान आपकी जगह में रखता है, बोलता है क्यों, मेरे एरिया में क्यों रखा, ये मेरी जगह है, उसमें तुम नहीं रख सकते, है ना। So on the teacher's suggestion they decided to measure the length of the desk
and make the mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk. So पहली और बुजो जब ये झगड़ा कर रहे थे तो टीचर ने बोला एक काम करो, इसको मेज़र करो डेस्क को और 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो जो उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, फिर झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। ये तेरा बेंच है, ये मेरा बेंच है, इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा तेरा। So here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली। अब उन्होंने क्या किया, मेज़रमेंट करने के लिए उनके पास गिल्ली डंडा थे, तो एक गिल्ली और एक डंडा रखा, फिर दूसरी साइड एक गिल्ली और डंडा रखा और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। देखो फिगर में है वैसे। The desk seems to have a length equal to 2 dandas and 2 gillies. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with the half of the desk equals to danda and a gilli in length. After a few days, the marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk seems to measure using the gilli and the danda. अभी क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद वो लाइन बिगड़ गई, तो फिर से वो लोग अपनी डेस्क को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसकी गिल्ली डंडा जो थे वो भी नए थे, है ना, दूसरे थे, जिससे पहले मेज़र किया था वो नहीं थे। तो इस बार जब मेज़रमेंट कर रहे थे ना तो थोड़ा सा चेंज आ रहा था, राइट। Now when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length and 1 gilli length with a small length still left out. So this is less than the 1 gilli length. Now what? अब क्या हुआ कि पहले तो एक गिल्ली और एक डंडा मेज़रमेंट आ रहा था, लेकिन अब इस बार उसके पास गिल्ली डंडा बदल गए, तो 2 डंडा और एक ही गिल्ली आई। एक गिल्ली का मैच नहीं हो रहा था मेज़रमेंट में, तो क्या पड़े पड़े बेंच लंबा या छोटा हो गया? नहीं, बेंच तो उतना ही था, लेकिन गिल्ली डंडा की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है ना, तो इसकी वजह से वो मेज़रमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ व्हाट वुड यू सजेस्ट पहली एंड बुजो डू टू मेज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क? कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड ए बॉल और ए बेल टू मेज़र द लेंथ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम? On the other hand, they could do this to take a small length of string and mark the 2 points on it. This will be the string length. They can measure the width of the desk in the string length. How can they use the string to measure the distances less than the length of a string? They can fold the string and mark it into half, 1/4 or 1/8 length of the string. Now perhaps the Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. You would say that they should use a scale in their geometry box and solve their problem, of course. And Bujo has been reading about the way people used to measure the distances in olden days before such standard scales were made. And he has been trying to follow the different methods of measuring the distances. तो इस बार गिल्ली डंडा बदल गए, तो किसी ने सजेस्ट किया एक काम करो, क्रिकेट की विकेट और ऊपर जो बेल रखते हैं वो यूज़ करो। किसी ने बोला नहीं, धागा यूज़ करो, है ना। तो हर एक किस्म से हम लोग मेज़रमेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट माप चाहिए तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड स्केल जैसा होना चाहिए, जैसे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना। तो किसी की भी स्केल लो, देखो अगर मेरी स्केल लोगे उसमें मेज़र किया 1 सेंटीमीटर का, राइट, फिर दूसरे किसी और की स्केल ली और उसको मेज़र किया तो वो 1 सेंटीमीटर ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी स्केल का 1 सेंटीमीटर बड़ा है और मेरी स्केल का 1 सेंटीमीटर छोटा है। अगर वो स्टैंडर्ड डिवाइस है तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्लास में किसी स्टूडेंट की भी स्केल लेके मेज़र करोगे तो 1 सेंटीमीटर ही होगा। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइसेस। और बूजो पढ़ रहा था कि पुराने ज़माने में जब ये स्केल ने वो सब नहीं थे तो लोग कैसे मेज़र कर रहे थे चीज़ों के बारे में। एक मैं आपको जोक सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी अपने बेटे की पैंट लेने जाता है दुकान में,
अब बेटा तो सो रहा था घर पे, है ना, तो वो मेज़र किया अपने हाथ से कि बेटा सो रहा है, तो कमर से लेके पैर तक उसके ऐसे हाथ रखा, और फिर घर से निकला, बाज़ार तक ऐसा ही हाथ रख के जा रहा था। तो दूसरे दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहा है, कितने बजे? बोलता बाज़ार में पैंट लेने जा रहा हूँ। बोलता कितने बजे? तो यूँ घड़ी देखता है, 12 बजे हैं। राइट, अच्छा ठीक है। अब वो हाथ कैसे रखेगा, भूल गया, यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, और गलती में हाथ ऐसे रख के दुकान से पैंट ले आया, और घर आके देखा तो पैंट छोटी थी। क्यों? क्योंकि एज ए मेज़र करते जाएंगे तो हमारे पास थोड़ी ना कोई फिक्स्ड लेंथ रहेगी। अगर घर से मेज़रिंग टेप से मेज़र करते जाते कि भाई इतनी साइज़ की पैंट दो, तो घर आके देखते तो वही साइज़ की मिलती है हमको, छोटी बड़ी नहीं होती। लेकिन पुराने ज़माने में जब स्केल नहीं थी तब लोग कैसे इस्तेमाल करते थे, कौन सी चीज़ को यूज़ करते थे, है ना। सो देर आर सो मेनी ओकेशंस व्हेन वी कम अक्रॉस टू नीड ए मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस. The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch the kurta. जब आप किसी दर्जी को कपड़ा देने जाते हो और बोलते इससे मेरा कुर्ता सिल दो, तो दर्जी तुरंत पहले आपका नाप लेगा कितना लंबा कुर्ता रखना है, फिर वो कपड़ा मेज़र करेगा और बोलेगा नहीं इतने में तो नहीं होगा। कभी कभी बोलेगा कपड़ा ज़्यादा है, थोड़ा बचेगा, कभी कभी बोलेगा इसमें से 2 कुर्ते बन जाएंगे। तो वो मेज़रिंग टेप से मेज़र करने के बाद ही बताएगा ना हमको। A carpenter needs to measure the height and width of the cupboard to know how much wood he would need to make it door. The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crop. तो कदम कदम पे हमको मेज़रमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चीज़ों के बारे में पता लगाना, जैसे खेडूत को पता लगाना है कि मेरा एरिया कितना है, मुझे बीज कितने चाहिए होंगे, मुझे पानी कितना चाहिए होगा। कारपेंटर जो लकड़ी का कपबोर्ड बनाता है तो उसको भी पता लगना चाहिए कि मेरे को लकड़ा कितना चाहिए, है ना। सो दिस इज़ हाउ ही विल फाइंड आउट। अ कारपेंटर नीड्स टू, ये सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, you want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet. How long is this room? How wide is this desk? How far is it from Delhi to Lucknow? Or how far is the moon from the earth? All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. The two places may be close enough like the two ends of a table, or they may be far like Jammu and Kanyakumari. So let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure the distance or the length. तो कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है मेज़रमेंट करने की। तो यहाँ पर 2-3 एक्टिविटी से हम पता लगाएंगे कि कैसे हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। एक्टिविटी 1 है वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1 यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ. Measure the length and breadth of the classroom. Is it possible that while measuring this you may find some part remains to be measured as it is smaller than your feet? Use a string to measure the length of the part of your foot as you did before and record your observation in the table. दूसरा है, हम लोग देखो कोई अगर बोलता है तुम्हारा क्लास कितना बड़ा है, तो हम पैर रख के नापेंगे कि कितने पैर आते हैं। तो कभी कभी एक जगह बच भी जाती है या हमारा पैर छोटा पड़ता है मेज़र करने के लिए। यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिखाया है कि बेंच की मेज़रमेंट जो है वो हाथों की उंगलियों से यूँ मेज़र करते हैं। वो हम लोग कंचे खेलते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं ना, राइट, पाम लेंथ, एक पाम लेंथ वैसे, राइट। सो हियर विथ योर फुट और हैंड यू आर डूइंग द मेज़रमेंट्स. सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, तो इस तरह से हम लोग मेज़रमेंट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। तो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने अभी बोला था कि भाई
तुम्हारी स्केल का 1 सेंटीमीटर, तो मेरी स्केल का भी 1 सेंटीमीटर उतना ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इन एंशिएंट टाइम्स द लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वेर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे कि हमारे पैर की साइज़ से मेज़रमेंट करते थे, फिर एक कदम यानी कि एक पैर और दो पैर के बीच जब हम चलते तो कितने कदम रह जाते हैं जगह, उससे मेज़र करते थे, और हाथों से मेज़रमेंट करते थे, राइट। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical construction। तो पुराने ज़माने में इंडस वैली के जो लोग थे उनको मेज़रमेंट का अच्छा खासा ज्ञान था, जो हमें पता कैसे लगता कि जब हमने खुदाई की थी एक्सकेवेशन के दौरान, तो वहाँ पर बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हमको मिले थे। A cubit as a length from the elbow to the fingertip was used in ancient Egypt। यहाँ से कोहनी से लेके ये वाली फिंगर का टिप तक यहाँ का जो लेंथ होता था उसको स्केल के जैसे यूज़ करते थे। अभी भी हम लोग कभी कपड़े की दुकान में जाओ तो वो भी ऐसे ही मेज़र करता है धागे को, है ना। उसको हम बोलते हैं क्यूबिट, 1 क्यूबिट। People also use the foot as the unit of length in different parts of the world, and the length of the foot used varied slightly from region to region, and people measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin। अगर मैं अपना हाथ यूँ लंबा करूँ और ये मेरे ठुड्डी जितना, राइट, अगर यहाँ तक मेज़रमेंट करूँ तो उसको हम बोलते हैं यार्ड। तो पुराने ज़माने में कपड़ा मेज़र करते थे तो भी ऐसे ही करते थे, यहाँ से कपड़ा पकड़कर अपनी ठुड्डी तक लगाते थे, राइट, उसको हम बोलते थे यार्ड। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वेर ए अंगुल, फिंगर की उंगली यूज़ कर, और ए मुठ, ऐसे कितनी मुठ जगह है। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोरआर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गारलैंड्स इन मैनी towns in India। Many such body parts continue to be in use as the unit of length when convenient. However, everyone's body parts could be slightly different size, and this must have caused the confusion in the measurement। तो कभी कभी देखो मैं अपने हाथ से मेज़र करके दूँ, मैं बोलूँगा कि 4 हाथ जितना लंबा धागा है, और मेरे बाद अगर किसी और मैम को दिया या किसी और सर को दिया, राकेश सर को, तो बोलेंगे सर ये तो सिर्फ 3.5 है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के हाथ की साइज़ अलग अलग हो सकती है, सबके बॉडी पार्ट्स एक जितने तो नहीं होते। सो इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। तो फ्रांस के लोगों ने 1719 में मेज़रमेंट का एक सिस्टम निकाला जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। और सारी दुनिया के साइंटिस्टों ने फिर उसको एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि हाँ ये बात सही है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम का मतलब होता है, चाइना में भी 1 किलोग्राम और पाकिस्तान में भी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाओगे तो 980 ग्राम का 1 किलो होता है और पाकिस्तान में 2500 ग्राम का 1 किलो होता है। नहीं, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स। फिर आप कहीं पर भी चले जाओ दुनिया में तो उतना ही होता है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक सिस्टम। The system of units now used is known as the International System of Unit। अभी जो चल रही है उसको बोलते हैं Standard International System, SI units। The SI unit of length is a meter। A meter scale is shown in figure 10.6। Also shown is a 15 centimeter scale in your geometry box। Each meter is divided into 100 equal divisions। तो 1 मीटर 100 उसमें इक्वल डिविजन्स, लाइंस जो होती है उसमें 100, हर एक लाइन के बीच में उतना ही गैप होता है, राइट।
तो इक्वल 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं, कॉल्ड द सेंटीमीटर्स, एंड ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स, और 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन्स होती है। कितनी? तो देखो मीटर में 1 मीटर में 100 इक्वल डिस्टेंस होते हैं जिसको हम सेंटीमीटर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 1 सेंटीमीटर और दूसरे सेंटीमीटर के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में भी 10 लाइन्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm यानी कि मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट, वी डिफाइन द लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड द किलोमीटर। तो कोई अगर पूछेगा कि तुम्हारी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, तो हम बोलेंगे 500 मीटर या 600 मीटर, नहीं, हम बोलेंगे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। सो बड़ी रेंज अगर मेज़र करनी है तो हम मीटर सेंटीमीटर में नहीं करते, हम किलोमीटर में करते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर द SI यूनिट्स। बिफोर डू दैट वी need to know the correct way of measuring the length and the distances। तो पहले जब हम लोग हाथ से, देखो कोई एक जगह है जिसको मैं हाथ से मेज़र करूँगा तो हो सकता है मेरे 5 पाम्स हो जाएंगे, किसी और को छोटे बच्चे को बोला तो 10 पाम्स हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं स्केल से मेज़र करूँगा और वो बच्चा भी स्केल से मेज़र करेगा तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। अभी मेज़र करते वक्त स्केल से मेज़र करते हैं तो भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना स्केल से भी गलत मेज़रमेंट आ जाता है। तो करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ क्या है ये हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।